जब ये बातें हो रही थी, जब शहीदों के नाम पे वोट मांगे जा रहे थे, चुनाव आयोग क्या कर रहा था? सो रहा था ना। नहीं। जब आप ईवीएम पे जाते हो और वोट करते हो, आपको ये तो दिखता है कि हमने वोट इस पार्टी को किया, इस कैंडिडेट को किया। उसके बाद हमें नहीं मालूम कि वो जो वोट हमने उस पार्टी और कैंडिडेट को किया या उसके पक्ष में काउंट हुआ या नहीं। कमीशन एट द इंस्टेंस ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री, राइट, एंड सी व्हाट हैपेंड इन द इलेक्शन। प्रचार हो रहा था और पीछे शहीदों के फोटोग्राफ दिखाए जा रहे थे, ये हम भी मानते हैं। और चुनाव आयोग ने क्या किया? आप कहते हैं कि हम मोटिव की बात नहीं कर रहे, चुनाव आयोग ने क्या किया? जब ये बातें हो रही थी, जब शहीदों के नाम पे वोट मांगे जा रहे थे, चुनाव आयोग क्या कर रहा था? सो रहा था ना। नहीं, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। इट इज अ फैक्ट। दिस इज नॉट ए पब्लिक मीटिंग आउटसाइड, वी आर इन पार्लियामेंट, वी आर इन पार्लियामेंट। इट्स So what? you are a very senior person. Direction during elections. That I am not disputing. That you have got every liberty to quote. This is a direction saying during that elections. election commission sleeping on the floor of the house. This is not Why? permitted. Why? Did it? All right, sir. Sir. Let me ask the question. Did it take action? Did the election commission take action? That is for the election commission No, to decide. I am saying they did not take action. You can do it outside. How can you say that? You don't want to discuss the larger issue of electoral reforms. The first speaker has put it in such a manner, flagging the issues. He did it. And also this side also, he has also explained constructively. If you get into tutu meme, and nothing will be achieved. आपसे एक आवेदन है। आप लोग इच्छा नहीं तो फिर मैं क्या करूं? नहीं, these are मिनिस्टर जवाब देंगे, उनको साथियों की जरूरत है। आनंद जी आप बैठिए, अब बैठ जाइए। You frame everything as a question. Yes, No motives to be attributed to the we are election not commission. attributing any motives. Please, I'll modify my. no motives to be attributed to the election commission. Nothing shall go on record. I modify my statement and say I did not see any action from the election You could have said commission. it like that. You could have said it Now, like that. sir, I remember way back in 2000, the next issue, and before I come to the EVM, the next issue is criminalization of politics. And I remember way back in 2014, our Prime Minister, at that time he was not the Prime Minister, he said, if I come to power, I have decided that when a new government is formed after May 16, I will set up a committee to find out what cases are pending against whom. I will not discriminate. I will not spare even BJP and NDA candidates. This is what he said in 2014. We are in 2019. Nothing has been done. You know the kind of candidates that were actually part of the election. I know motives. I'm not attributing any motives. We know the candidates. We know some of them won. We also know some of them are in the Lok Sabha. And we know the number of candidates who've got criminal records. And the Prime Minister said, I will not spare anybody. I will not induct them as ministers if they have criminal cases pending against them. These are his statements. Now, if you are really serious about reforms, why don't you start within your house? Move on. Next. Now, sir, come to the EVM. That should be. Sir, Everybody should think our about it. objection to the EVM, is You are taking full time of yours. Yes, Afterwards, yes. others will not get. Our objection to the EVM is principled. Our objection to the EVM. No, then everybody will take that plea. No, ye to phir if you disturb us, Please. let me. Time must be deducted from our party. सर ऐसा है कि हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि जो अगर हमारी वो संस्थाएं जिन्होंने संविधान की रक्षा करनी थी, वो रक्षा करने मंत्री है, नया मंत्री है। Please. वो अगर रक्षा करनी बंद कर दें, क्योंकि आपको मालूम है कि अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल फॉर प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल एंड द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस इज विद द इलेक्शन कमीशन। इस दौरान में जब नोटिफिकेशन इश्यू होती है और परिणाम आते हैं, इस बीच में इलेक्शन कमीशन इज द मास्टर। अगर वही संस्था जो कदम उठाना चाहे
उसमें अगर विलंब हो जाए तो उसमें फिर संविधान का नुकसान होगा। और बाकी भी ऐसी संस्थाएं हैं जब हमें लगता है कि संस्थाओं को कुछ इंटरफियर करना चाहिए, कोई डायरेक्शन देना चाहिए, अगर वो नहीं दे तो संविधान का नुकसान होगा, हम लोगों का नुकसान होगा। इस बात को हमें सोचना चाहिए। देखिए, इसमें कोई हमें आरोप की बात नहीं है, केवल सोचना चाहिए कि अगर हम अपने संविधान की रक्षा नहीं करेंगे और जो सोच संस्थान है वो नहीं करेंगे तो संविधान जाएगा कहां, देश आगे बढ़ेगा कैसे? Please, you have to conclude now. Now, sir. Now, on the EVMs, all that we want to say is that the voting machine has become a counting machine. That's the heart of the matter. जब आप EVM पे जाते हो और वोट करते हो, आपको ये तो दिखता है कि हमने वोट इस पार्टी को किया, इस कैंडिडेट को किया। उसके बाद हमें नहीं मालूम कि वो जो वोट हमने उस पार्टी और कैंडिडेट को किया या उसके पक्ष में काउंट हुआ या नहीं, ये तो मशीन काउंट करती है ना। ये प्लीज अरे समझ लीजिए पहले, बिना समझे तो कोई चर्चा होगी। मिनिस्टर विल रेस्पॉन्ड, प्लीज। आप लोग अननेसेसरी ये कर रहे हैं, चिंता मत करो, यू हैव अ कैपेबल मिनिस्टर, ही विल रेस्पॉन्ड। और भी आपका पार्टी का भी है वक्ता और बाकी पार्टियों का भी, सबको मौका मिलना चाहिए। और देर आर कई देश, विश्व में कई ऐसे देश हैं जो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, कोई वजह होगी। यूनाइटेड स्टेट्स नहीं करता, यूरोपियन कंट्रीज नहीं करते, जर्मनी में तो इट्स हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और क्यों? द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, अरे क्या तुम इंटरफेयर कर रहे हो? प्लीज द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये बीमारी सर्वव्यापी है, क्या करूं मैं? The German Constitutional Court in 2009 declared voting through electronic voting machines unconstitutional and unlawful. This they did by insisting that the process of voting should be such as to be easily understood, verifiable, and controllable even by the most ordinary voter. Right, Kapil ji, please. That's the question. I have to call the next man. No, one second. So allow me to. 5 minutes. It pains me even to tell you also. नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊं। नहीं, प्लीज कंक्लूड। 5 मिनट की बात है। 5 मिनट तो आपका पार्टी का समय पूरा हो जाएगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, 5 मिनट की बात है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं, किसी को मालूम नहीं कि सोर्स कोड क्या है, किसी को मालूम नहीं कि प्रोग्राम क्या इसमें लोड होता है। जब मैं आपको बताऊं बैलेट पेपर बनता है तो वो तो चुनाव के तुरंत 2-4 दिन पहले ही बनता है ना। तो बैलेट पेपर का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बनता है, एक इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जाता है और वो बैलेट पेपर यूनिट में डालता है। और जब वो बैलेट पेपर यूनिट में डालता है तो उसकी कनेक्टिविटी वीवीपैट पे करता है। वो इलेक्शन कमीशन नहीं करती, वो ईसीएल का इंजीनियर होता है या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर होता है। और जब वो वहां जाता है वो कनेक्टिविटी वो आउटसोर्स होता है, और आउटसोर्स होता है। वहां क्या होता है क्या नहीं होता ना इलेक्शन कमीशन को मालूम, ना हमें मालूम, ना आपको मालूम, ना किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। फिर ठीक है ना प्लीज भाई तो होने दीजिए, बाद में बाकी लोगों को भी मौका मिलना है। हुआ क्या कि 2018 में नवंबर 2018 में एक मंत्री साहब मुंबई गए और वहाँ एक इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड का फंक्शन था। वहाँ उनको एक सवाल पूछा गया कि लगता ऐसा है कि सरकार बैकफुट पे है। 2018 की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि 2013 अगस्त-सितंबर में हमने एक सर्वे किया था 2,03,000 लोगों का, और सर्वे से यह निकला कि 2014 की इलेक्शन में हमें पूर्ण बहुमत मिलेगी। मतलब कि उनको पहले ही 8 महीने पहले पता चल गया था। उन्होंने ये बोला, फिर उन्होंने ये बोला, यूट्यूब पे आप देख लीजिए, उन्होंने फिर ये बोला कि अगस्त-सितंबर 2018 में भी हमने ऐसा ही सर्वे किया है। प्राइवेट कन्वर्सेशन को जहां भाषण हुआ उसको कोट करना। कन्वर्सेशन सर, दिस इज नॉट अ कन्वर्सेशन. It is. Please let me place it. You have to authenticate it. No, 1 second. I'm not making an allegation. I'm not making, sir. I just I'm stating. He said कि हमने सर्वे किया है, आप ही के मंत्री हैं, हमने सर्वे किया है। मैं आज आपको कह सकता हूं कि 2019 में हमें 297 से 303 सीट मिलेंगी।
वो तो क्या है, अपना बड़ी अंदाजा अच्छी है, बात, बहुत बड़ी लोगों अच्छी ने अपना बात। अंदाजा किया। क्यों? बड़ी अच्छी बात है, मैं कहता हूं बड़ी अच्छी। अब यार Issue. हमें भी गुड़ बना दो, हमें भी गुड़ बता दो कि 6-8 महीने पहले हमें भी पता चल जाएगा कि कितनी सीट मिलेंगी। हमें भी गुड़ बना दो, प्लीज प्लीज वो प्लीज वो हमें भी कनेक्टिविटी दिला दो, राइट वो राइट प्लीज कनेक्टिविटी। नहीं, आई हैव टू देन नेम द पीपल, इट्स नॉट गुड, प्लीज अंडरस्टैंड। सर बस मैं एक अपनी थोड़ी सी पंक्तियां लिखी हैं, मैं करके कंक्लूड करता हूं। लम्हों की नजाकत को जो भी पहचान पाएगा, और इस नजाकत के मोड़ पे हम खड़े हैं, लम्हों की नजाकत को जो भी पहचान पाएगा वो ही हर चेहरे पे मुस्कान लाएगा, वो ही हर चेहरे पे मुस्कान लाएगा। तेरी सियासत में जो तूने लकीर खींची है, वक्त उसकी तस्वीर तुझको खुद ही दिखाएगा। धन्यवाद, थैंक यू कपिल जी, थैंक यू वेरी मच।